welcome back to my channel and welcome to another vlog and welcome to last vlog of this year, like last vlog of 2024. So in this vlog I am not gonna show you guys like what I am doing or anything like that, but I would like to share with you guys like my year plan, like 2024, what I had planned for myself and what all like I achieved, like kind of ambition board. I didn't created any ambition board specifically, I even though I wanted to, but then I didn't got chance. That's just an excuse, I know. But then yeah, I wanted to create an ambition board or ambitious board, what do they say, like, but yeah, that that only I wanted to create, but I couldn't. But hopefully I will create it for 2025 because I have a lot of plans for 2025 too. But I just wanted to share with you guys my, or like what was my plans and everything. I know like a lot of people would not be interested, but then still, here I go. And then before that, I would just like to give you a little quick update about my life, like as I have been giving you like in my few videos updates about like how I am doing and everything lately in Korea, because obviously living your country and adjusting in new country is little bit difficult. So now it is really good, like I am adapted to this environment and everything, and I have friends which I really love and they also love me. And then but it's the end of the year. It's today is 30th December. I am shooting this video and the days are so packed because yesterday only I came from Seoul. We went to Seoul. We had our last trip together, like four of us, Vaishnavi, me, Tanisha, and Laura. Because Vaishnavi already went to India. She reached yesterday night, and Tanisha is going back to India because she was a semester exchange student, so she's not gonna come back. Vaishnavi is gonna come back for sure in in March. Yeah, she will be back in March. And Laura is here with me, and but I have my exams and semester which will be going on, but Laura doesn't have anything. So like we really can't, you know, like plan कि हम बाहर जा सके या नहीं. But yeah, so we are just into that thing. And today also 30th, I literally my morning, see, we came yesterday at 12:30. I got fresh and slept, and then morning again I woke up late because I was so tired because of the trip. I had my classes. Before that I shoot a small like mini haul video which you will get to see later. But yeah, I shot that. And then afterwards I wanted to edit the Christmas video which I have already put it. So that I did today, and now I am shooting this. So like all the vlog thing, because I know I'm not gonna get time because next week I have my midterms, and after that like more tests, because it's only 1.5 months left for my semester to get over. So everything is together. So I am telling you guys, like I am apologizing you बिफोर हैंड ओनली कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा व्लॉग शायद से मतलब रेगुलर उतना नहीं डाल पाऊँगी शायद, बिकॉज मेरे एग्जाम्स और सब कुछ हो गए, पर मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ. बट मेरा आज का दिन भी अभी मैं लिटरली मैंने ये चेंज किया है बिकॉज मुझे मैंने सुबह वाले जो वीडियो में मैंने ब्लैक डाली थी पूरे दिन में, बट मुझे ब्लैक डाल के अपना ईयर एंड नहीं करना था. आई डोंट नो, बहुत सिली रीज़न है. बट यस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई लव ब्लैक एंड वाइट ओनली. आई डोंट हैव लाइक ज़्यादा कलर वाले कपड़े. बट या आई ट्राई टू गेट लाइक कलरफुल क्लोथ समटाइम्स, बट होते हैं लोग वैसे. सो इसीलिए, एंड वाइट इज़ माई पर्सनली फेवरेट कलर, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू वेयर लाइक चेंज माई क्लोथ एंड देन वेयर दिस एंड अगेन आई एम गोना चेंज इन टू ब्लैक एंड गो आउट फॉर so again, that's what I was telling, like it is going so hectic because I came today full day, the shoot, vlog and everything, editing sab kuch, and then posting the vlog. And then now we will be going for Tanisha's birthday bring in thing. Yeah, we are going to Grizzlies. All of our friends and her friends are gonna meet. And then tomorrow morning again, like I'll wake up and we are gonna have lunch with Tanisha's parents before they leave to Busan. And then because afterwards she will be like leaving officially tomorrow
and then we are not gonna meet, so we are gonna have that, then the new year and everything. So everything is there. I am happy that I am busy, बट आई नो उसके बाद बहुत ही शांति होने वाली है. उसके बाद मेरे को बहुत पढ़ाई करना है, बहुत सब कुछ साथ में आने वाला है. सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट आई नो आई डू इट. करना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस है नहीं मेरे पास. तो या दैट्स इट. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि आगे बहुत से व्लॉग आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि सोल वाले हैं. बट मैं उसके पहले प्रायोरिटाइज करूँगी. आई नो लाइक लॉट ऑफ पीपल माइट बी वेटिंग टू सी लाइक the soul vlog, because they might have seen my stories and photos and post everything. But a lot of people wanted my study plan video and the conversion of the what do we say, the marks for the transcript thing, like for 0.4 scale. So I will be prioritizing that vlog more than the soul one, because in February the guidelines in February GKS guidelines are gonna come out. So I would like to put those vlog first. So sorry guys, soul वाला vlog थोड़ा late आएगा, but उसके पहले study plan डालूंगी मैं, and जो भी GKS related है वो वाले videos डालूंगी, and then I'll put the soul series, because soul वाला vlog होगा आई गेस 3-4 व्लॉग हो गए सोल रिलेटेड इसके लिए. तो वरना वो बहुत डिले हो जाएगा. एंड जैसे कि सारे स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करने वाले हैं उनको अभी सब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी जनवरी एंड यू जस्ट हैव 1 month. सो ऑल द बेस्ट गाइज, दिस डू बेस्ट. एंड देन अगर आपको कुछ भी चाहिए तो vidyaSingh_02 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो फिर कमेंट कर देना यहाँ पे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी. अब विदाउट मेरी बक मैं चालू करती हूँ मेरा ईयर का. सो मुझे पता है, मतलब मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने मेरे नोट में लिख के रखा था. सो मैं ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मैंने 7 मिनट फालतू की बकबक कर ली है. फालतू की नहीं थी वैसे, तो इम्पॉर्टेंट थी, बट स्टिल आप लोग रुको, बने रहो अगर आपको सुनना है तो, वरना फिर कुछ और देख लो. सॉरी. सो अभी मेरी फालतू वाली बकबक बंद करते हुए हम चालू करेंगे मेरा साल. आई एम सॉरी टू टेक योर ऑलरेडी 7-8 minutes, बट क्या करूँ. बट फालतू नहीं थी, इम्पॉर्टेंट भी थी, मुझे शेयर करना था आपसे. वैसे तो मैं सबसे शेयर करती रहती हूँ, तो आई फील लाइक यू गाइज आर माई फ्रेंड, सो आई वुड शेयर विथ यू गाइज ऑल्सो. इसके लिए मैं आपको इतनी पक 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 करते रहती हूँ. एंड देन नाउ हम चालू करते हैं. ओके, तो 2024 ईयर प्लान. तो पहले मैं आपको अपना लिस्ट बताती हूँ कि मेरा क्या क्या लिस्ट में था. एंड देन मैंने बस मेरे फ़ोन के नोट्स में लिख के रखा था कि मेरा ये ईयर का प्लान होगा. एंड उसके बाद मैं आपको अपना ईयर पूरा एक्सप्लेन करूँगी, जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी. बट उसके पहले लेट मी स्टार्ट. लाइक फर्स्ट वॉज फ्लाई टू कोरिया, विच आई डिड. एंड ये व्लॉग गणपति बप्पा के कृपा से मैं साउथ कोरिया में बैठ के बना रही हूँ. एंड देन स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस विच आई ऑलरेडी डिड. आई हैव, जिसको नहीं पता है, आई स्टार्टेड माई स्मॉल बिजनेस बैक इन इंडिया, विच इज़ द lilacsstore.vs. उसका इंस्टाग्राम मैं दे दूँगी नीचे कहीं पे डिस्क्रिप्शन पे, या तो यहाँ पे कहीं पे. तो वो मैंने चालू किया था, एंड मैंने थोड़ी सी अर्निंग भी की थी उसमें. मैंने ऑर्डर्स भी बनाए थे, बट फिर अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मेरा सब सामान वहाँ पे है. बट I think I will just hand it over to my sister and ask her to do. But then yeah, I did that. I wrote like learn driving, which I didn't. Then I wanted to visit Kedarnath, Ram Mandir. Actually Kedarnath couldn't happen because I came here, and then बहुत सारी चीज़ें. And then Ram Mandir also I was like gonna go when I visited my village like उत्तर प्रदेश, but वो भी नहीं हो पाया because सब लोग busy थे. काशी विश्वनाथ जी मैं जाके आ चुकी हूँ, मतलब मैं गई थी इसी साल में जब मैं गाँव गई थी. उसमें तो तुषार और मैं ही गए. आपने व्लॉग देखा होगा, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा. Then in my YouTube subscriber, I wanted to go above 1000k, which I already did. And thanks to you guys, I love you guys so much to help me like to reach ye wala my
resolution of the year. Then, okay, I wanted to earn from YouTube. Next was that, but कोई बात नहीं. I hope like next year 2025 में I will do that. Then it was like birthdays. I wanted to celebrate like all the birthdays with my, like, everyone's birthday, everyone whom I am close to. But it's okay, it happens. Now I am here, so I can't celebrate, but then I do celebrate with them online. मतलब जैसे कि मेरा बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था, तो we can always do that. नाउ बढ़ते हैं मेरे साल से. मेरा साल कैसे चालू हुआ था वहाँ से. ओके, सो द वेरी फर्स्ट डे आई रिमेंबर वी वेंट टू सिद्धिविनायक मंदिर गणपति बप्पा के दर्शन लेने के लिए. मैं, मम्मी, आशा, त्रुषा, प्रेम, रायन, हम सब गए थे वहाँ पे. एंड वो इतनी लाइन थी, इतनी लाइन थी. और हमारा ऑफिस था बट हमको लगा हमारे दर्शन नहीं हो गए. बट ऐसा हो गया कि गर्ल्स लोगों के दर्शन हो गए, बॉयज़ के नहीं हो पाए. तो प्रेम और ब्रायन का दर्शन नहीं हो पाया था, बट हमारा हो गया था कैसे कैसे करके. तो या मेरा साल स्टार्ट हुआ था इन शॉर्ट गणपति बप्पा के दर्शन से. तो गणपति बप्पा मोरया. एंड फिर उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई. लाइक जनवरी में मैंने प्रिपरेशन किया. मेरा इट वॉज नॉर्मल. लाइक जनवरी में प्रिपरेशन था GKS का, फेब में अप्लाई करना था एंड एवरीथिंग. बट साइड बाई साइड आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर जॉब्स टू, लाइक यहाँ पे नहीं, इंडिया में. एंड ऑल्सो देन उसके बाद ऐसा हुआ लाइक प्रेम गेव हिज 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम. सो ही गॉट 97. लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू द हाईलाइट्स ऑफ माई 2024 विच आई जस्ट हैव इन माई लाइक क्लोज टू माई हार्ट. एंड उसके अलावा मैं शॉर्ट्स भी डाल दिया है मैंने, मेरा फुल ईयर वाला रिव्यू जैसा. तो आप रिव्यू होता है रिव्यू जैसा, तो आप देख सकते हो. सो प्रेम को 97% आए थे 10th के बोर्ड्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे घर में. बिकॉज हमारे पूरे फैमिली, पूरे ख़ानदान में जो है, नो वन हैज़ गॉट लाइक 97%. मेरा खुद का 64 आया था 10th में. सो बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए. हम लोग पाँचों लिटरली रो दिए थे. मतलब हमको इतनी खुशी हुई थी कि प्रेम का इतना अच्छा मार्क्स आया, बिकॉज हमने उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. बट कहीं ना कहीं लाइक आई न्यू कि 90 के ऊपर आएगा, बट 97 आई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. तो वो था. फिर उसके बाद जैसे कि आपको भी पता है, ये सबके लिए था कि 2024 जैन में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पे. तो हमने मतलब दिवाली बनाई थी फिर से पूरी. तो वो भी हाईलाइट थे एक मेरी लाइफ का. मतलब हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था. आपने वीडियो देखा होगा, मतलब मेरे, अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारी चीज़ें मैं अगर बोल भी रही हूँ, जो भी उसके मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले, तो आप जाके वो राम मंदिर वाला भी वीडियो देख सकते हो. हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था. वो एक चीज़ मतलब है जो हाईलाइट रहेगी मेरे लिए. देन त्रुषा का 18th बर्थडे था. 18th बर्थडे सबके लिए स्पेशल होता है. तो त्रुषा का 18th बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, सब कुछ डेकोरेशन करके, और उसके लिए 18 गिफ्ट्स लाए थे. एंड इवन प्रेम का भी 16th बर्थडे था, जो कि स्पेशल था. तो मैंने त्रुषा को, मैं वहाँ पे तो नहीं थी इंडिया में, बट यहाँ से मैंने त्रुषा को बोला था कि तू कुछ ना कुछ उसके लिए करना, सो दैट उसको अच्छा लगे. तो फिर उसने सब चीज़ें की थी वहाँ पे. वो हुआ. फिर त्रुषा के मतलब मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मेरी बहन, मतलब जो त्रुषा है, उसने अपना फ्रीलांसिंग का स्टार्ट किया था, स्मॉल बिजनेस. वो अभी भी चल रहा है. अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर जाके आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हो. जिसको भी डिज़ाइनिंग या कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम होगा, तो शी डज फ्रीलांसिंग वर्क. सो शी स्टार्टेड हर स्मॉल बिजनेस ऑल्सो. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सिबलिंग्स इन शॉर्ट. मुझे रोने आ रहा है अभी सोच के, बट या आई एम रियली प्राउड ऑफ देम. वो दोनों भी बहुत उन दोनों ने किया. एंड देन त्रुषा इज ऑल्सो वर्किंग लाइक रियली हार्ड. वो इधर उधर भागती रहती है सब, मतलब उसका स्टडी, ग्राफिक्स और सब चीज़ों की वजह से, असाइनमेंट्स के लिए. एंड प्रेम भी मतलब अच्छा कर रहा है. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम. तो ऑब्वियसली फैमिली के रिलेटेड हमेशा हाईलाइट्स रहते ही है. फिर उसके बाद मेरा like half of the year was normal, and then I did
pool, like the pool thing, the game, and bowling for the first time in my life because I have never done it, but मैंने किया and I really enjoyed it. तो वो भी मेरे लिए कुछ ऐसा था कि मैंने कुछ नया सीखा है. I know it is not that great and big thing like learning bowling and pool and everything, but then for me it is because I have always seen this like games, but I have never done it. So yeah, मेरे लिए वो नई बात थी. Like I learned new thing this year. I even learned how to travel and navigate like airport पे जाओ और airport वाली सब चीज़ें, because I have never ever in my life I have traveled from flight and been to airport. तो कोरिया आना was the best thing which happened to me and my family, I think, because I'm just grateful for this year. I'm too grateful कि मुझे मतलब ये साल मेरा बहुत ही ब्लेस्ड था, टच वुड. एंड देन आई एम ग्रेटफुल फॉर टू माई गॉड्स ऑल्सो, बिकॉज हमने किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था. मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि आई वॉन्ट टू स्टडी आउट, मुझे बाहर जाना है, मुझे दूसरे कंट्री में स्टडी करना है और सब कुछ मुझे देखना है कैसी होती है लाइफ. आई वॉन्ट टू ट्रैवल अलोन एंड दिस दैट, बट मुझे कभी भी पॉसिबल लगता नहीं था. मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई भी किया था, बट फिर मुझे ऐसा लगता था यार मुझे कैसे ही मिलेगा, मुझे कहाँ ही मिलेगा, ऐसा वैसा. बट मैंने फिर भी मतलब वो जो बहुत वेट करना पड़ता है, आपको बहुत पेशेंट रखना पड़ेगा. मतलब मैंने फेब में लिटरली फेब से अप्लाई करो, फिर मेरा एम्बेसी ट्रैक का रिजेक्ट हो गया, मैंने फटफट से यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई किया सेम टाइम पे. एंड द प्रोसेस टेक्स एटलीस्ट 5 मंथ. फेब मार्च अप्रैल मई जून, या जून में फाइनल रिजल्ट आता है एंड में. सो इट वॉज रियली लॉन्ग प्रोसेस. तो वो पूरा जो मेरा ये 5 महीना था वो वेटिंग में ही था सब कुछ. तो इसीलिए, और फिर जब वो हो गया मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए तो बड़ी बात थी, बट मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो दूसरे कंट्री में है, दूसरे कंट्री में स्टडी करने के लिए आया है. तो फिर उनको भी बहुत खुशी हुई थी. तो I'm really happy that I got a chance to make them feel proud, and वो खुश है इस चीज़ से कि मैं यहाँ पे हूँ. मैं भले से रोती रहती हूँ यहाँ पे, बट उनको खुशी होती है कि आई एम enjoying my life and I am having like I'm living good life. वहाँ पे भी obviously I was living, but I am living the life I always wanted to, क्योंकि मुझे हमेशा बाहर आना था. तो इसीलिए वो बहुत खुश है. एंड इवन वो लोग भी आएंगे यहाँ पे कभी ना कभी विजिट करने के लिए. देन ऑब्वियसली आई केम टू कोरिया. वो एक सब बहुत बड़ी बात थी इस ईयर की. देन आई मेड न्यू फ्रेंड्स. स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगता था मेरे कोई दोस्त नहीं बनेंगे. मैं हमेशा फ़ोन करके रोती रहती थी कि कब कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ये वो. फिर मेरी वैष्णवी से फ्रेंडशिप हुई. वैष्णवी से भी फ्रेंडशिप मेरी ऐसी हुई थी कि एक दिन बारिश आ रही थी, मैं नीचे रुकी थी एंड वैष्णवी को मैंने देखा भागते हुए, एंड मुझे लगा ये कोई इंडियन जैसी दिख रही है, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ. तो मैंने उससे बात किया, वैसे वैसे करके हमारी दोस्ती हुई. एंड देन उसकी वजह से तनीषा वॉज हर रूममेट, तो हमारी दोस्ती हुई. एंड देन लॉरा, ऐसे सब. तो दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स एंड नाउ वी आर लाइक ईच अदर्स फैमिली काइंड ऑफ. सो वो एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा ये रहेगी कि यार मतलब फ्रेंड्स कैसे भी बन जाते हैं ना, मतलब कहीं से भी हम जब एक्सपेक्ट नहीं करते हो गए. मतलब बारिश हो रही थी और मैंने बस ऐसी वैष्णवी से बात कर लिया देख के कि जस्ट वो इंडियन दिख रही है, तो एंड फिर वैसे वैसे करके अभी हम फ्रेंड्स बन गए सब लोग. एंड बाकी सब भी उसके ही वजह से मुझे मिले, तो थैंक यू वैष्णवी. एंड देन बट या हम सारे लोग मतलब आई एम हैप्पी. एंड फिर आई ऑल्सो विजिटेड 2 cities ऑलरेडी, लाइक सोल एंड बुसान में जाके आई. एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. बुसान एंड सोल दोनों भी. बुसान देख के मुझे, वहाँ का बीच देख के मुझे लिटरली मुंबई की याद आ गई, क्योंकि मुंबई में बीच रहते हैं, बाकी सिटीज़ में यहाँ पे जल्दी है नहीं. बट या सो आई रियली मिस्ड मुंबई दैट टाइम. बट बहुत ऐसे ब्यूटीफुल है, नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, सब कुछ. एंड सोल इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल. आई फेल्ट लाइक या ओके गुड, लाइक सिटी में मैं आई हूँ एंड एवरीथिंग. वो सब मैं अभी पूरा डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि आप सोल वाले व्लॉग में देखना वो सब, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. फिर मैंने न्यू लैंग्वेज पढ़ी, जो कि मैंने कभी मतलब ऑब्वियसली बचपन में ही पढ़े होते हैं हमने, और उसके बाद मैंने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी. और उसके बाद मैंने अभी न्यू लैंग्वेज पढ़ी ये साल.
Korean. So I am still learning, but still I started like 2 semesters already in the language. फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जितना हो सके उतना। हम सबसे बस था ये कि बिकॉज आई थिंक एवरी वन कैन रिलेट विद दिस दैट वी यूजुअली डोंट गेट टाइम विद आवर फैमिली टू गो आउट फॉर डिनर या कहीं पे बाहर जाए। मतलब वी ऑलवेज लाइक वी हैव बीन आउट लाइक विद फैमिली, बट यू नो सिर्फ 5 जन नहीं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरी फैमिली तीसरी फैमिली, मतलब पप्पा के फ्रेंड्स वाली फैमिली हो जाती, सब लोग वैसे जाते थे। बट हम पाँचों डिनर के लिए गए थे बारबेक्यू नेशन। दैट आई रियली लव बिकॉज वो सिर्फ हम पाँचों का टाइम था। एंड हमने बहुत मज़े से खाया, बहुत अच्छा खाना भी था। तो वो चीज़ मतलब मुझे ये साल की बहुत अच्छी लगी। एंड मैं जब भी वो वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हम पाँचों का। सो वो है। एंड उसका मैंने शॉर्ट्स डाला था। एंड फिर उसके बाद सारे फेस्टिवल्स मतलब एक्चुअली सारे फेस्टिवल्स मेरे यहाँ पे ही गए हैं, क्योंकि अगस्त एंड में मैं आई थी। उसके पहले तो अपने लाइक हिंदू में इतने फेस्टिवल्स होते नहीं है जल्दी इंडिया में। मतलब जो भी थे सब नॉर्मल वाले थे, इतने बड़े बड़े सारे लेट आए। मतलब जब मैं आ गई थी उसी टाइम पे जन्माष्टमी थी। नेक्स्ट डे 27 को जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी। फिर आने के बाद गणेश चतुर्थी, जो कि मेरे मतलब बहुत करीब है दिल के, गणपति बप्पा। तो उसमें मैं बहुत इमोशनल थी, बट लकीली हमको यहाँ पे भी दर्शन मिल गए गणपति बप्पा के, वो भी आपने देखा होगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ था उस दिन कि गणपति बप्पा भी चाहते कि वो मतलब हमको दर्शन देना चाहते थे। इसके लिए कहीं ना कहीं से उन्होंने हम मतलब हमको दर्शन दे दिए वैसा। तो बट फिर मैंने सारा चीज़ ऑनलाइन अटेंड किया था गणेश चतुर्थी का, ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल पे आरती विसर्जन सब कुछ। तो वो एक मोमेंट था। फिर दिवाली जो सबसे बड़ी बात होती है, मतलब दिवाली तो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, वो भी मैंने सब कुछ ऑनलाइन सेलिब्रेट किया। बट फिर मैंने यहाँ पे पूरा ट्राई किया अपना बेस्ट यहाँ पे देने का कि लाइक मैं अपने फेस्टिवल सब कुछ कर सकूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेटेड कर सकूँ और सब चीज़ें। तो यस ये सारी चीज़ें थी बेसिकली। मतलब बहुत कुछ हुआ, बट मेनली जो मेजर मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ माय फैमिली एंड फॉर मी बोथ ऑफ अस वाज मी कमिंग हियर। तो ये था। So in short, I will tell you this, like सिद्धिविनायक गई थी, प्रेम का पास होना, उन दोनों का बर्थडे, त्रुषा प्रेम का। देन like I'm just proud of both of my siblings. Then making my parents proud was like always my motive, and still it is. Like who doesn't want to make their parents proud? Like everyone has that goal. Like मेरे parents मेरे से खुश है वही मुझे चाहिए। तो दैट वॉज वन थिंग। एंड आई न्यू कि मैं बाहर जाऊँगी कुछ करूँगी तो उनको बहुत खुशी होगी, मेरे से भी ज़्यादा वो खुश हो गए करके। ऑब्वियसली मम्मी मतलब ऑब्वियसली मम्मी लोग, पापा जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन लोग रोते हैं, बट देन दे वर सो हैप्पी। सो वो चीज़ थी। एंड देन आई लर्न समथिंग न्यू, लाइक भले वो गेम हो, लैंग्वेज हो, ट्रैवलिंग हो, सब कुछ चीज़ें मैंने बहुत सी चीज़ें न्यू सीखी इस साल में। देन फेस्टिवल, फैमिली से दूर रहना, सब कुछ मतलब मैंने ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी कि ये ऐसा भी होगा। मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू कम आउट लाइक दूसरे कंट्री में, बट आई नेवर। ओके 23 मिनट हो गया, सॉरी। देन बट या आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज, मतलब मैंने कभी भी इतना नहीं सोचा था। मतलब मैंने ये सोचा था कि मुझे बाहर जाना है, बट मैंने कभी बाहर आने के बाद वाली चीज़ें सोची नहीं थी कि यार मैं बाहर जाऊँगी तो मैं अकेले रहूँगी, फ्रेंड्स नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, मैं रोऊँगी, खाना ये वो, मैं कुछ नहीं सोचा था। बट यहाँ पे आने के बाद मैं इतना रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों आई, क्यों नहीं, ये वो। आप कोई भी बाहर जाएगा आई थिंक सबको सेम ही लगता है, बट थोड़े टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़, अगर कोई भी बाहर आ रहा है तो प्लीज़ आप ऐसे टेंशन मत लेना या कुछ भी ऐसे ये मत होना। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि सब कुछ ठीक हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। मतलब ठीक एकदम से नहीं होगा, ऑब्वियसली वो कमी रहेगी फैमिली नहीं होने की पास, बट
मेरे लिए ऐसा था कि मुझे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी एंड वो लोग हमेशा मेरे साथ में थे, मतलब जब भी मैं कॉल करके रोती थी सब कुछ, आई नो रोना नहीं चाहिए बट स्टिल मैं हमेशा रोती ही रहती हूँ, मैं स्टिल रोती हूँ, अभी भी 4 महीने होने के बाद भी मैं रोती रहती हूँ, बट एवरीथिंग, okay sorry, everything like was good in this year. I know like it's not like always good. बहुत सी चीज़ें उल्टी सीधी हुई, मतलब मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से झगड़े किए मेरे, आई रिमेंबर मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी झगड़ा हो गया था विच वॉज नॉट गुड एट ऑल, बट हमने बाद में वापस से ठीक कर लिया। मेरा अंकिता के साथ भी झगड़ा हुआ था, वो भी हमने चलो ठीक कर लिया सब कुछ, मतलब मेरी मतलब फ्रेंडशिप में भी झगड़े हुए हैं, बहुत सी चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। इट्स नॉट लाइक मैंने सिर्फ आपको सिर्फ मेरी जो इम्पोर्टेंट मेमोरीज़ है मैंने वो बताया 2024 के, इट्स नॉट लाइक कि मेरा पूरा साल ही अच्छा था। बहुत सी चीज़ें उसमें ये थी, जो मेरा वेटिंग पीरियड था उस टाइम पे मैंने जो चीज़ें मतलब फ़ील की है, जो मेरा एम्बेसी ट्रैक से जब मेरा नहीं हुआ था इसी साल में, तभी जो मैंने चीज़ें फ़ील की थी वो सबसे वर्स्ट था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वाई लाइक लास्ट ईयर मैं अप्लाई नहीं कर पाई, इस ईयर जब मैं अप्लाई कर रही हूँ पूरी अपनी मेहनत से, मेरा हुआ क्यों नहीं करके, और मैं बहुत ही हो गई थी। बट देन सब टाइम की बात होती है, आई थिंक लाइक आई नो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट ऑल्सो, क्योंकि जो भी मेरा ये वीडियो, जो मुझे सबसे अच्छे से जानते हो कि फ्रेंड्स फैमिली, वो लोग बोलेगी तू कौन बोल भी कौन रहा है, बट देन आई एम जस्ट टेलिंग फॉर यू गाइज कि सब टाइम की बात होती है। लाइक आफ्टर बिकॉज मैंने रुकी नहीं उस टाइम पे इमोशनल होके, और मैंने तुरंत से अप्लाई करने का सोचा, तो दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई मेड दिस ईयर आई थिंक, लाइक वो स्टेप लेना और फटफट अप्लाई करना। तो या इन शॉर्ट लाइक इट वॉज लाइक अ लॉट लाइक रोलर कोस्टर राइड, जो वो वेटिंग वाला पीरियड था, फिर वहाँ से लेके जब मुझे पता चला, मेरी फैमिली को पता चला कि आई वॉज सिलेक्टेड एज अ जीके स्कॉलर, दैट वॉज द बेस्ट थिंग। देन लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइक आई हैव एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में ट्रैवल नहीं किया था अब्रॉड कंट्री या तो फ्लाइट से, तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत डर भी था कि मैं कैसे करूँगी, मतलब मैं गेट के अंदर घुसते ही मैं तो अकेले पड़ जाऊँगी, क्योंकि बाहर ही है सब लोग और मुझे तो मतलब मैं अंदर अकेले जाना पड़ेगा, तो वो था। बट फिर भी मैंने कामली मतलब सब कुछ ट्राई किया करने का। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फ़्लाइट में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी, लैंग्वेज सीखा, कोरिया आई, यहाँ पे सब चीज़ों में अडेप्ट होना, फ्रेंड्स बनाना, फैमिली से दूर रहना मैंने फ़र्स्ट टाइम सीखा। पहले ऐसा लगता है हमको कि अरे यार मतलब किच किच पक पक ये सब चीज़ें रहती है, बट फिर जब हम दूर रहते हैं ना फैमिली के, तब हमको रियलाइज़ होता है असली मीनिंग, तो वो पता चलता है दूर रह के। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं थी वैल्यू या कुछ, मैं ऑब्वियसली आई जस्ट लव एवरीवन लव्स देयर फैमिली, बट दूर रह के ना वो और भी चीज़ें रियलाइज़ होने लग जाती है कि मम्मी के हाथ का खाना, सब झगड़ा, अब तो वो झगड़ा भी सब याद आता है, अभी ऐसा लगता है कोई नहीं है झगड़ा करने के लिए, प्रेम के साथ, चिंटू के साथ सब चीज़ें, गुस्सा होके बैठना और सब चीज़ याद आती है। तो yes, but the major thing I would say is, but then I tried my best to spend time, and then जब मैं तो शादी मेरी फ्रेंड जब मेरी कज़न बहन की शादी अटेंड करने गई थी, तब हम काशी विश्वनाथ भी जाके आए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैंने शिव जी के दर्शन कर लिए थे वहाँ पे, एंड सब कुछ, एंड आई थिंक मैं मिस भी कर रही होगी बहुत सारी चीज़ें, बट देन यस, these were all the highlights and I still cherish these, like वो जो waiting period था वो था, but then I always had my friends and family beside me to help me and support me, and वो लोग ही सबसे ज़्यादा खुश थे जब उनको पता चला कि मैं जा रही हूँ करके, and I just miss my mom, dad and sibling a lot and my friends too, but I will be back soon to India, I hope. And then I did a lot of thing, like when I received, oh my leg is gone, I did receive like stipend, so वो stipend से भी मैंने बहुत सी चीज़ें मैनेज की, and I have purchased something जो आपको बाद में पता चलेगा, अभी इस व्लॉग में तो मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको, बट
वो बाद में बताऊँगी मैं आपको कि मैंने क्या ख़रीदा है मेरे उस स्टाइपेंड से। मैं मतलब कहीं तो ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ। आई एम ट्रैवलिंग नेक्स्ट ईयर समवेयर, वेयर वो नहीं बताऊँगी, आप लोग गेस करो और कमेंट करो कि मैंने कहाँ की टिकट खरीदी होगी और मैं कहाँ जा रही हूँ करके। आप लोगों के लिए शायद से बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है वहाँ जाना। गेस करो कहाँ। बट या एंड या एंड मेनली मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए ही था। एंड ऑल्सो what I was gonna say, nothing. But I just love them and I miss them and I know for them. In short, अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ कि सब राउंड अप करके, तो बेस्ट मोमेंट मेरा 2024 का होगा। एक, जब प्रेम का परसेंटेज आया था, ही गॉट 97। दूसरा, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एज अ GKS स्कॉलर, वो। And all the time whenever I have visited temples, I always feel like blessed, वो चीज़। and making my parents proud जब मेरी फैमिली को पता चला। and then त्रुषा का 18th बर्थडे, प्रेम का 16th बर्थडे, ये। एंड देन ऑल्सो हमने घर पे सत्यनारायण जी की पूजा करवाई थी। मतलब हर दशहरे को होती है, बट जब मैं आने वाली थी उसके पहले हमने किया था, उसमें मम्मी पापा बैठे थे, वो मुझे अच्छा लगा था। तो यस, इन शॉर्ट हम पाँचों के लिए भी वो मोमेंट्स सबसे ज़्यादा बहुत बड़े थे, आई थिंक, जो हम हमारे लिए लाइफ चेंजिंग थे। सो यस, एंड आई होप सबका साल ऐसे ही अच्छा भी गया होगा, थोड़ा सा ख़राब भी गया होगा, जैसे मेरा था। मतलब बहुत से डाउन्स भी थे उसमें, बट आई मैनेज एंड स्टिल ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड गिव माई बेस्ट। सो आई होप आप लोग का भी अच्छा गया होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट में शेयर करना आपका 2024 कैसा गया, एंड आपके क्या क्या रेजोल्यूशन है 2025 के लिए, कमेंट करना, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे हैं, मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में कभी तो भी। बट आप लोग प्लीज़ कमेंट में शेयर करो कि क्या है क्या नहीं है करके, एंड आपको कैसे लगा सब कुछ। एंड या आई डोंट नो हाउ आई एम गोना स्टार्ट माई ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने अपना न्यू ईयर स्टार्ट किया था चौपाटी पे, अगर आपने देखा होगा तो। अभी भी मेरी फैमिली मामा वाले साइड पे ही है, शायद वो लोग जाएंगे न्यू ईयर स्टार्ट करने। बट देन आई होप you all will have a good year ahead. आपका जो नया साल हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, प्रॉस्पेरस हो, गुड हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, एंड आपके जो भी विशेस है वो सारे 2025 में अचीव हो, एंड 2024 भी अच्छा गया हो। एंड आई जस्ट वांट टू से अबाउट 2024, आई कैन, मतलब मैं कितना भी थैंक यू बोल दूँ 2024 ईयर को, इज़ नॉट इनफ, बिकॉज for me it's the best year. I know every year is a good that we get a chance to live one more year extra, but मेरे और मेरी फैमिली के लिए था, एंड मेरे फ्रेंड्स के लिए भी, और जो भी मुझे सपोर्ट, जिन्होंने भी सपोर्ट किया था। एंड थैंक यू गाइज ऑल्सो टू फॉर सपोर्टिंग मी, बिकॉज अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मेरे चैनल पे इतना सब होता नहीं, एंड मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। सबसे बड़ी बात जो मैंने किसी से भी ज़्यादा शेयर नहीं की है, मैंने सिर्फ कुछ लोगों से ही शेयर किया, सिर्फ मेरी फैमिली और फ्रेंड्स से। बट या आई गॉट माई यूट्यूब चैनल मोनेटाइज दिस ईयर, सो that is the biggest thing, also one of the biggest thing in my life, कि मैंने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ आपकी वजह से। सो थैंक यू सो मच मेरा कंटेंट देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। एंड या थैंक यू 2024, थैंक यू गणपति बप्पा, शिव जी, एंड थैंक यू मम्मी पापा, चिंटू प्रेम, फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, एंड थैंक यू फॉर टू माई फ्रेंड्स for always being there for me. मैं अभी नाम लेने जाऊँगी तो मैं किसी ना किसी का नाम भूल जाऊँगी लेना, एंड देन फिर लोग मुझे बोलेंगे तूने मेरा नाम नहीं ली। बट स्टिल आई वुड लाइक टू थैंक्स द पीपल हु वाज बी लाइक माई फ्रेंड्स। मेरी फैमिली तो ऑब्वियसली मैंने नाम लिया, मम्मी पापा, चिंटू प्रेम का, बट माई फ्रेंड्स was
ब्रायन, उत्कर्षा, कोमल, फरीन, तकदीस, केतकी, गीता, and Ankita, Karina, Peksha, and every single person, Ruchika, Ruchira, Sakshi, and सारे लोग जिन्होंने भी हेल्प किया है, एंड प्राची विच इज़ लाइक चिंटू की फ्रेंड बट शी इज़ सो स्वीट. शी ऑल्सो लाइक शी वॉज सो हैप्पी टू लिसन टू माई थिंग्स लाइक मी गोइंग टू साउथ कोरिया एंड एवरीथिंग. सो उसको एंड सभी को जिन्होंने मेरा साल अच्छा बनाया, वेदू भी, शुभम जिसका नाम है. तो यस, थैंक यू सो मच गाइज एंड सॉरी फॉर माई इतना लंबा बक बक. आई नो 35 मिनट्स हो गए, 36 मिनट्स हो गए एक्चुअली, बट या I don't know, I'm just grateful. I'm just grateful for this year. Touch wood, touch wood. I'm just so grateful. मतलब ऑनेस्टली कसम से बोल रही हूँ, आई नो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, बट कसम से मेरा साल मतलब जितना भी डाउन थे उतने ही अप्स थे. आई स्वेयर. एंड ये सबके साथ होता है. प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि हाँ ये सिर्फ अच्छा ही, बट मैंने जैसे कि कहा बहुत सारे डाउन्स भी थे, बहुत सारे अप्स भी थे. तो बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट वी ऑल मेड इट through the end of the year and we are gonna start 2025 together and I hope it goes good. So happy new year guys, happy new year to all of you. आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मे दिस ईयर बी as good as and more good than 2025. Sorry, 2024. May this 2025 year be the best year you want to be. बाय, सी यू इन. अब मैं आपको सीधा मिलूँगी अगले साल 2025 में, 2025 के फर्स्ट व्लॉग में. सो सी यू देयर. बाय.